Good evening. Good evening, everyone. How are you? Thank you. Thank you. I'm good. Thank you very much. How are you all? कैसे हो? All well? I'm good. Thank you. Okay. Doubts है क्या? Naina is asking some doubts. Okay. The aim of Charter Act was to reduce powers of EIC, then Invited Act of 1833 made a purely administrative body. Because there were vested interests, my friends. Naina, there was quite a bit of politics here. Because many members of East India Company were also very strong holds in the government. Okay. That was the reason. All right. What was House of People? Was it like Lok Sabha? Council of State was the legislature and yet not given legislative powers. Yes, House of People was very similar to Lok Sabha. Yes, and Council of State was the legislative council. नाम था legislative council जो था. Okay. However, it was not given any legislative power. It was given advisory power. Okay. I think we'll. Yes, even I want to take the doubts. Tomorrow is the doubt session, so we'll take the doubts as it is. Okay. Chalo. Can we start the topics? Oh, there are many doubts coming. Why is there? See, you can read some of these acts. You want to read that, you can read those acts. Okay. Nothing much is given in these acts, so you can read for Lakshmikant. Sir, is the present constitution uphold quid pro quo? Why quid pro quo? What is the pro quo here? This is a completely sovereign made constitution. Why quid pro quo? There's nothing pro quo here. All right, friends. Okay. आज का topic citizenship. All right. Open your notes. Right. Start making notes. Don't waste time unnecessarily. Right. Let's get into the business. Right. Topic of citizenship. All okay? Friends, all okay. All right, cool. आज का topic citizenship. Right. Now listen. When I'm talking of citizenship, first understand this part. So you'll have to really pay attention to this. Okay, बड़े ध्यान से सुनना सब कुछ. Right. जब मैं citizenship की बात करता हूँ ना, my friends, तो पहली बार कुछ अजीब सी वर्ड में बोल रहा हूँ. Okay. The Constitution of India. आमतौर पे मैं every time I start saying तो मैं बोलता हूँ यार fundamental law of the land है. Everything should emerge from the Constitution of India. Yes or no? However, very surprisingly, citizenship के बारे में Constitution of India is having a very limited role. मैंने क्या बोला? Citizenship के बारे में Constitution of India. अब please ये सब बंद करना, comments बंद कर दो please. Okay, please comments बंद कर दो. Okay, I'm very happy that you are here. मुझे मालूम है तुम लोग हो. Okay, so kindly just concentrate. मुझे ज़्यादा खुशी इस बात पे होगी कि तुम लोग समझ रहे हो rather than commenting. Until unless कुछ real urgent आएगा, please don't comment. और जिसको भी technical problem आती है, मेरे ख्याल से refresh करो, switch off करो, switch on करो. That's the best I can do. Okay, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी मजेदार में साथ में ही हूँ. Okay, तुम्हें जितनी इंटरनेट की नॉलेज है उससे कम ही मुझे मालूम है. So if you are any trouble, please refresh it, switch off, switch on. दुनिया में सब कुछ वर्क करने लग जाता है. मैंने ऐसे देखा इलेक्ट्रॉनिक्स में. Okay, all right. Now listen. So when you're talking of the citizenship, okay, as I said, the Constitution of India has limited roles. Okay, it has a very limited role in this part. Why? Because Constitution of India deals with citizenship at the commencement of the Constitution of India. ये तुम्हारे notes में लिख लेना. It is at the commencement of the Constitution of India तक ही है. In other words, citizenship will be dealt by the Constitution of India only till 26 January 1950. 26 January 1950 के बाद Constitution of India को citizenship से कोई मतलब नहीं है. It is absolutely silent about it. I hope the picture is clear. And therefore, जब हम citizenship के बारे में पढ़ रहे हैं, तो we are only interested in reading the Constitution of India जब तक कि 26 January of 1950 नहीं हो जाता. 26 January 1950 के बाद Constitution of India is silent about. It is completely silent about the citizenship issue. Are you understanding? तो अब हम पढ़ेंगे पहले इसलिए दो पार्ट्स में. हम इसको पढ़ेंगे in terms of citizenship before 26 January 1950 and citizenship after 26 January 1950. Before के लिए मैं बुक खोलूंगा Constitution of India and after के लिए मैं बुक खोलूंगा what is called as Citizenship Act of 1955. क्या बोलते हैं इसको? Citizenship Act of 1955. तो मैं Citizenship Act के बारे में पढ़ूंगा
आफ्टर 26 जनवरी 1950. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पिक्चर क्लियर हो गया? मैं आगे चलता हूं. Okay, so ये मैं बात कर रहा था. Constitution will have limited role at the commencement of the Constitution of India. Okay, ये वर्ड ऐसे के ऐसे लिखना. Okay, and subsequent stages हम छोड़ दिया हमने पार्लियामेंट को. सर आपके बोलने से होता है कि जब मर्जी लेफ्ट बाय द पार्लियामेंट. ओके, मेरे कहने से कुछ नहीं होता भाई. ओके, पहले समझ लेते हैं. ओके, पहले हम सुनते हैं आर्टिकल 5. ओके, अब जैसे मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो. So, part 2 of the Constitution, मैंने क्या बोला? Part 2 of the Constitution deals with the issue of citizenship. और Part 2 में we will study from Article 5 to Article 11. मैंने क्या बोला? From Article 5 to Article 11. Article 5 deal करता है citizenship के. Okay? Article 5 deal करता है citizenship on the basis of domicile. On the basis of domicile. Okay? What does this mean? अब ध्यान से सुनो. If any person is a domicile of India, and he was born in India, number one, or either of his parents were born in India, or he was an ordinary resident in India 5 years prior to the commencement of the Constitution of India, बेटा चिंता ही मत करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुझको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देगी. मेरी बात समझ में आई या नहीं? राइट? मैंने क्या बोला? यू आर अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया, यू आर बोर्न इन इंडिया, या फिर आपके आइदर ऑफ द पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, या यू आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया 5 years प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 5 years प्रायर मतलब कम से कम 1945 से तुम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो 1950 तक. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. तुम्हारा हो गया 5 years प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा आपको तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं. यू आर ऑटोमेटिकली द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5. ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं? फ्रेंड्स, सबको समझ में आ गया या नहीं? ओके, तो इसको याद रखना. मैं born in India, either of the parents born in India, or 5 years immediately prior to the commencement of the Constitution. Picture clear? Very simple. Now, ये simple है. अब जैसे मैं बोलता हूँ उसको याद रखना, ठीक है? जैसे मैं समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात. Now, Article 5 is therefore dealing with domicile. मैंने क्या बोला? इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखोगे. सिटीजनशिप तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे बाद तुम्हें जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा ये. ओके, सेकेंड इज आर्टिकल 6. आर्टिकल 6 डील करता है माइग्रेशन से. किससे डील करता है? माइग्रेशन से. आर्टिकल 7 डील करता है रिवर्स माइग्रेशन से. क्या बोलता हूं मैं इसको? रिवर्स माइग्रेशन. कृपा करके ये एग्जाम में मत लिखाना. ओके, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है. एंड आर्टिकल 8 डील करता है रजिस्ट्रेशन से. आई होप जहां पे भी तुम बैठे हो ये 4 वर्ड्स बोलो. आर्टिकल 5 कैसे डील करता है? डोमिसाइल से. आर्टिकल 6 किससे डील करता है? माइग्रेशन से. आर्टिकल 7 किससे डील करता है? रिवर्स माइग्रेशन से. और आर्टिकल 8 किससे डील करता है? रजिस्ट्रेशन से. Okay, everyone has understood? Naina, domicile means you are staying in India and you want to continue staying in India. ठीक है? Please don't ask these बच्चों वाले questions हमारे. Okay, can we have this? Say the word. Article 5 is domicile. Article 6 is migration. Article 7 is reverse migration. Article 8 is registration. Please ध्यान से सुनो. तुम्हें मैंने बता दिया. मैंने तुम्हें क्या बताया? Article 5. Article 5 से मैंने क्या बताया? Article 5 said you are a domicile of India. You were and you were born in India. Either of your parents were born in India and you were an ordinary resident in India 5 years prior. तो आर्टिकल 5 तो सबको क्लियर हो गया. क्या हुआ स्मिथ? बड़ा सा थॉटफुल सा स्माइली डाले. गुड इवनिंग शेरपाल. स्मिथ, एनी डाउट? बड़ा चलो व्हाटएवर. ओके, फेयर एनफ. अब आर्टिकल 6. ओके, मैंने क्या बोला? आर्टिकल 6 वाज माइग्रेशन. अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो. माइग्रेशन एप्लीकेबल किसके ऊपर है? या तो मैं इंडिया में पैदा हुआ था, या मेरे पेरेंट्स पैदा हुए थे. ओके, या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया. मैंने क्या बोला? बोर्न इन इंडिया, आई वाज बोर्न, माय पेरेंट्स वर बोर्न एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न, और माय ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न. अब ध्यान से सुनो. अब सुनो मेरी बात प्लीज. से तुम्हें मालूम है इंडिया और पाकिस्तान की formation was on the basis of Hindu Muslim majority? Yes or no? Now, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान सुनो. जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, ओके, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, वो लोग के लिए मैंने एक कट ऑफ डेट बोली है. वो कट ऑफ डेट इज 19 जुलाई 1948. जहां भी बैठे हो प्लीज ये याद रख लो. मैंने क्या बोला? 19 जुलाई 1948 is the cut off date with regards to the migration from Pakistan to India. Okay,
ना जो लोग इंडिया आ गए प्रायर टू 19 जुलाई 1948, मैंने क्या बोला, जो लोग इंडिया आ गए बिफोर 19 जुलाई 1948, बेटा आपके तो कोई चिंता ही नहीं है, यू विल गेट ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। ओके, तुम्हें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 6। मैं फिर बोल रहा हूं, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, पेरेंट्स वर बोर्न, ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न एंड तुम इंडिया आ गए प्रायर टू 19 जुलाई 1948, देन तुम्हें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ओके, लेकिन अगर तुम आए आफ्टर 19 जुलाई 1948, मैंने क्या बोला, आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो बेटा ऑटोमेटिक सिटीजनशिप हम तुमको नहीं देंगे। हम तुम्हें देंगे सिटीजनशिप लेकिन ऑटोमेटिक नहीं देंगे। तो सर कैसे दोगे? तुम्हें पहले यहां पर 6 महीना रहना पड़ेगा। कहां पर? इंडिया में। माइग्रेट होने के बाद तुम्हें 6 महीना यहां पे रहेगा, तुम्हें ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बाद तुमको रजिस्टर होना पड़ेगा विद अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो तब की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। एक बार गवर्नमेंट ने जिसको अथॉरिटी को परमिशन दिया है, वो तुम्हें अलाउ कर देगा आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन, इफ यू हैव स्टेड हियर फॉर 6 मंथ्स। जब रजिस्टर हो गए, मुबारक हो, तुम इंडिया के सिटीजन हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज? फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है या नहीं? This should be 100% clear. Everyone has understood? Okay? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं फॉर दोस ऑफ यू जिनको नए नए हैं, तो उनको शायद मेरी लैंग्वेज से क्लैरिटी में प्रॉब्लम होती है। तुम होने चाहिए, यू शुड बी बोर्न इन इंडिया, पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, ओके, एंड और योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। अब ये इंडिया इंडिया क्या मैं बोल रहा हूं? ओके, ये इंडिया इंडिया क्या बोल रहा हूं? ये इंडिया कौन सा इंडिया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला इंडिया। ओके, कौन सा इंडिया? द अनडिवाइडेड इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंडिया डिवाइडेड था, वो डिफाइंड था, वो है ये अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, सो यहां पर मेरी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? मेरी पहली कंडीशन होनी चाहिए, या तो मैं पैदा हुआ होना चाहिए, या मेरे पेरेंट्स बोर्न होने चाहिए, या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न होने चाहिए। किसमें? अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, अब उसके बाद दो में से एक कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कि भाई तुम पाकिस्तान से इंडिया आ गए बिफोर 19 जुलाई 1948, तो कोई मुबारक हो, तुम तो ऐसे ऑटोमेटिकली बन गए इंडिया के सिटीजन। या फिर तुम इंडिया आए आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो तुम पाकिस्तान से आए यहां पर 19 जुलाई 1948 के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 6 मंथ्स यहां पे रहो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, एक रजिस्टर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी, और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाके अपने आप को रजिस्टर करा दो। कांग्रेचुलेशन, तुम बनते इंडियन सिटीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरी बात समझ में? सिटीजनशिप का चैप्टर थोड़ा रस्टिक लैंग्वेज में करोगे ना तो इजी रहेगा। ओके, इसके टेक्निकलिटीज में जाओगे ना बहुत कंफ्यूजिंग होने लग जाता है, तो अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग। ओके, नाउ मैंने बोला आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 इज रिवर्स माइग्रेशन। अब ये मेरी लैंग्वेज है, ओके, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा, प्लीज, ओके, प्लीज ये सब वर्ड्स लिखकर मत आ जाना, ये मेरा तरीका है। मैं किससे डील कर रहा हूं आर्टिकल 7 में? आर्टिकल 7 में मैं डील कर रहा हूं, ओके, आर्टिकल 7 में डील कर रहा हूं। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो तुम लोग डाउट्स पूछते हो ना, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तुम्हें पॉलिटी की एग्जाम देनी है कि तुम्हें सिटीजनशिप लेनी है, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, जस्ट गो विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बेकार के क्वेश्चन, टेल समथिंग अबाउट अथॉरिटीज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंस्पेक्टर्स को असाइन कर दिया। ओके, थोड़ा सा डाउट्स वो पूछो जो पूछने वाले हैं, राइट? कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ओके, प्लीज ध्यान से सोचो, ये सब बातें थोड़ा कोई पूछने वाला है। ओके, कौन था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? इंस्पेक्टर कुलकर्णी थे जी। कम ऑन गाइस, बी सीरियस यार, कम ऑन, राइट? लिसन, ओके, ये कोई क्वेश्चन पूछता है, कम ऑन, बी यू शुड नो यार क्या पूछ रहे हैं। आंखों में रेडियम को पकड़ना सीखो, कोयले में से डायमंड पहचानना सीखो, राइट? ये थोड़ा पूछेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इंस्पेक्टर जी बैठे थे, ये तुम्हारे सिविल सर्विसेज में एग्जाम आने वाले। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट। ओके, फिजूल के डाउट्स मत पूछो बच्चे, टाइम वेस्ट करो, तुम्हें हजारों चीजें याद करनी है। ओके, कोई अलाउद्दीन खिलजी की फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम नहीं पूछने वाला तुमसे, ऑलराइट? प्लीज अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू। ओके, प्लीज पे अटेंशन, ऑलराइट? अब है आर्टिकल 7। ओके, आर्टिकल 7 क्या है? रिवर्स माइग्रेशन। नाउ व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन? ये उल्टा लैंग्वेज है। उल्टा लैंग्वेज ये है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, मैंने क्या बोला? जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए आफ्टर 1 मार्च 1947, ये डेट याद रखना, आफ्टर 1 मार्च 1947, वो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है। मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में बोल रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज? मैंने क्या बोला? those people who were in India and migrated to Pakistan, they are not citizens of India. तो सर आप तो सिटीजनशिप पढ़ा रहे थे, ये नॉट सिटीजन क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इसलिए नॉट सिटीजन पढ़ा रहा हूं बेटा, बिकॉज उस टाइम पर एक गवर्नमेंट ने परमिट फॉर रीसेटलमेंट निकाला। ओके, उसको बोला परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमिट फॉर परमानेंट रिटर्न। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से वापस आ गए। ओके, अब जब वापस आ गए, जो माइग्रेट करके चले गए थे, वो जब वापस आ गए तो उनको मैंने रिवर्स माइग्रेशन वर्ड यूज किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
जो पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947 बट वापस आ गए अंडर परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, उनको डील करता है आर्टिकल 7। उनको क्या डील करता है? आर्टिकल 7। आर्टिकल 7, ओके, आर्टिकल 7 में जो लोग परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न में आए ना, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं स्लाइड बदल रहा हूं, ध्यान से सुनो, उनके साथ हम वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे और उनको तब सिटीजनशिप देंगे जैसे आर्टिकल 6 वालों को दिया था, जो लोग आफ्टर 19 जुलाई 1948 इंडिया आए थे। मैं फिर से बोलूं, ये समझ में आ गया? मैं फिर से बोलूं, व्हाट डज दैट मीन? ओके, कि उनके साथ हम वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे आर्टिकल 6 में आफ्टर 19 जुलाई 1948 वालों के लिए किया गया था। मतलब क्या? इनको बोला जाएगा 6 महीना यहां रुको, 6 मंथ्स यहां पे ऑर्डिनरी रेजिडेंस रो, फिर गो टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहां पे साइन करवाएगी, रजिस्टर करेगी, एंड मुबारक हो, तुम इंडिया के सिटीजन बन गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर? यस और नो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तुम्हें ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तुम इसको ऐसे पढ़ोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन से तो बेहोश होकर गिर जाओगे। आई होप तुम्हें सब समझ में आ गया। मैंने तुम्हें बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में ही सिखा दिया। ओके, आई डोंट थिंक तुम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। और अब ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब मेरे हिसाब से यू आर एब्सोल्युटली रेडी विद दिस पार्ट। सो आर्टिकल 5 मेरा होना चाहिए डोमिसाइल, उसके बाद ओके एंड ओके डोमिसाइल के बाद या तो आई एम बोर्न इन इंडिया या माय पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, या फिर ध्यान से देखते जाओ। ओके, now either I am born or my parents are born or I am an ordinary resident for 5 years before the commencement of the constitution 1945 से कम मैं इंडिया में होना चाहिए। तो मुबारक हो, तुम्हें ऑटोमेटिक है। ओके, मैं तुम्हारे लिए रिकैप कर रहा हूं। आर्टिकल 6 डील्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन में जो कट ऑफ डेट है वो 19 जुलाई 1948 है। तुम बॉर्न होने चाहिए या तुम्हारे पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए। अब दो लोग हैं, या तो बिफोर 19 जुलाई 1948 या आफ्टर 19 जुलाई 1948। बिफोर आ गए, मुबारक हो, तुम लोगों को ऑटोमेटिक रिजर्वेशन है। ओके, सेकेंड आर्टिकल 6 ओके सॉरी 19 जुलाई 1948 के बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहो यहां पर 6 मंथ्स के लिए, अपने आप को रजिस्टर कर दो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट। ओके, आर्टिकल 7 ओके, आर्टिकल 7 सेज रिवर्स माइग्रेशन। ये उल्टी लैंग्वेज बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947, तो सॉरी सर, तुम इंडिया के सिटीजन नहीं हो। लेकिन अगर तुम इंडिया वापस आ गए अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज परमिट फॉर रीसेटलमेंट, तो भाई हम तुम्हें सिटीजनशिप दे सकते हैं। ओके, कैसे दे सकते हो सर? आप यहां पर आओ, 6 मंथ्स यहां पर रहो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओ, वो आपको रजिस्टर करेगा, मुबारक हो गए, तुम इंडिया के सिटीजन बन गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी? पिक्चर क्लियर? ओहो, बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं। नहीं ना, डोमिसाइल मीन तुम्हारा इंटेंट होना चाहिए, तुम रेजिडेंट भी हो और तुम्हारा इंटेंट होना चाहिए टू कंटिन्यू दिस पार्ट। कैन बी डिनाइड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आल्सो, हाँ मे बी। ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्वेश्चंस क्यों आते हैं। चलो बढ़ो। ओके ऑलराइट, अब मेरे पास सिचुएशन कुछ और है। एक स्लाइड गायब होगी। राजवीर सर ये सेक्शन क्लोज कर दिया करो। बगावत नहीं बेटा, आई जस्ट वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, यू नो, कि आप लोग पॉलिटिक्स एग्जाम देने जा रहे हो, ये सब क्यूरियोसिटी। बॉर्न आफ्टर बिफोर व्हिच स्टेट अंडर आर्टिकल 5, बॉर्न बिफोर व्हिच स्टेट, ये सब 26 जनवरी 1950 से पहले का ही बेटा। ओके चलो ऑलराइट, एक इसमें आर्टिकल का स्लाइड गायब हो गया, सो आई जस्ट हेल्प यू आउट ऑन दिस पार्ट। नाउ आर्टिकल 8 इज द वन। ओके, सो आर्टिकल 8 एक मिस हो गया स्लाइड, उसको देख लेते हैं। ओके, तो अभी तक हमने 5 6 7 कर लिया है। ओके ओके, आर्टिकल 5 6 7 कर लिया है। नाउ लेट्स लुक एट आर्टिकल 8। नाउ आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए डील कर रहा है जो लोग, जब इंडिया का कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उस टाइम पर 8 है, सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा, जस्ट वन सेकंड, कौन बोल रहा है 8 है? कहां यार, 8 है ही नहीं, ओनली यू कैन सी। ओके व्हाटएवर, लेट मी फिनिश दिस वन। ओके, तुम्हें दिख रहा है ना? चलो तुम्हें दिख रहा है, मुझे उसी में खुशी है। ओके नो प्रॉब्लम, लिसन टू मी। सो आर्टिकल 8 डील्स विद ओके, सो एक ऐसे पर्सन ओके, या तो
या तो ही हिमसेल्फ वाज बोर्न इन इंडिया, या आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। ओके, ये कौन सा इंडिया है माय फ्रेंड्स? ये कौन सा इंडिया है? ये वो इंडिया है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाला अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, लेकिन जब जब ये कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तब मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट था। मैं कौन? जिसको सिटीजनशिप चाहिए। जो मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट था टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। भाई मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट था ना सर आउटसाइड इंडिया, तो मुझे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्या? बेटा मिल जाएगी, कोई चिंता की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने लोकल डिप्लोमेसी में जाओ, लोकल कॉन्सुलेट में जाओ, जहां भी किसी भी कंट्री में, वहां पे रजिस्टर कर दो अपने आप को। कांग्रेचुलेशन, तुम इंडिया के सिटीजन बन जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी सिंपल पार्ट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो मैंने क्या कर लिया? 5 डोमिसाइल, 6 माइग्रेशन, 7 reverse migration, 8 is what is called as registration. Are you understanding this part? Friends, all okay? Yes? Repeat करो। बेटा Article 8 deals with if I am born in India, my parents were born in India, grandparents were born in India. ठीक है? कौन सा इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया। लेकिन जब देश में कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, उस टाइम पर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट था किसी और कंट्री में, तो मुझे सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। आप इंग्लैंड में रह रहे थे उस टाइम पर, आप यूएस में रह रहे थे, वहां पर कोई टेंशन नहीं। तुम इंडिया के सिटीजन हो तो रह सकते हो ना। कैसे? तुम वहां पर डिप्लोमेट में जाओ, कॉन्सुल में जाओ, और कॉन्सुलेट में अपने आप को रजिस्टर करा दो। कांग्रेचुलेशन, तुम इंडिया के सिटीजन हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, कहाँ रेजिडेंट, कहाँ 6 महीना रहना बेटा? वो अपने घर में ही है, वो भी अमेरिका में घूम रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें सिटीजनशिप से मतलब है। ओके, जस्ट एम्बेसी में जाओ और अपने आप को रजिस्टर करा दो, तुम्हारा काम हो गया। Everyone has understood? I think this is very simple. Let's understand the entire thing. अब तुम्हें क्वेश्चन आता है और सब लोग चिल्ला के बोलते हैं, एवरीवन, जिसको मैं पूछूंगा ना वो जोर से बोलता है, बोलते हैं सर इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं होती। एवरीवन आंसर्स, इंडिया में देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप। ओके, ये सब लोग आंसर दे देते हैं। ओके, नाउ जैसे ही वो डुअल सिटीजनशिप क्या बोलते हैं कि यस देयर इज नो सिटीजनशिप, तो नाउ ये लिखा कहां है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 9 में। ओके, Article 9 says that if any citizen of India voluntarily acquires a foreign citizenship, मैंने क्या बोला? If any citizen of India voluntarily acquires a foreign citizenship, बेटा तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप गायब हो जाएगी। ओके, यू व्हाई? बिकॉज इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 9 में। ओके, सो आर्टिकल 9 says there is no dual citizenship। तो हमने 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, जिससे हमें सिटीजनशिप मिल रही है। Article 9 बोल रहा है there is no dual citizenship. Picture clear? Friends, clear or not? Very good. Now, ये कहाँ चला गया? Now, तुम्हारा लाइसेंस जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, ये एक बार मिलता है कि जिंदगी भर चलता है कि रिन्यू करना पड़ता है? रिन्यू करना पड़ता है। यस और नो? पासपोर्ट रिन्यू करना पड़ता है। यस और नो? सब कुछ रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन बेटा वंस यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया ना, इसको रिन्यू नहीं करना पड़ता। ओके, तुम्हें साल भर उड़ के ऐसे नहीं जाना पड़ेगा यार हमारी सिटीजनशिप रिन्यू कर दो। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 10 says you are deemed to be a citizen. If you are a citizen, you continue to be a citizen unless you are disqualified to be a citizen. तो तुम्हें सिर्फ एक ही खबर सुननी है, अगर सुनने का भगवान अगर देना है तो, कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। बार बार अपनी क्वालिफिकेशंस नहीं चेक करनी। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 10 में। पिक्चर क्लियर? व्हाट डज दैट मीन? इफ यू आर, ये लिख लो, इफ यू आर डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, you continue to be a citizen of India unless you are disqualified to be a citizen of India. Are you understanding? इसको बोलते हैं presumption of citizenship. You are a citizen जब तक कि तुम you are not a citizen. Are you understanding? इसको लाइन समझे? You are a citizen जब तक कि you are not a citizen of India. Are you understanding? और वो disqualification अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। और ओके, लास्ट आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 वो मैराथन में रेस नहीं होती। ओके, जब एक रनर भागते हुए जाता है, फिर वो एक बैटन दूसरे रनर को दे देता है, ये कुछ कुछ वैसा ही है। आर्टिकल 11, ओके, आर्टिकल 11 बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद फाउंडिंग फादर्स बोल रहे हैं, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर बोले कि बेटा इसके आगे सिटीजनशिप आप संभालो। कौन हुआ? पार्लियामेंट। ओके, यहां तक हमारा काम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 26 जनवरी 1950 के बाद डियर पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजनशिप, हमने ये बॉल तुम्हारे हवाले कर दी। इसको बोलते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 says that parliament shall be given the power to determine acquisition or termination of citizenship after 26 January 1950. That is the commencement of the constitution. मेरे ख्याल से तुम अगर कोशिश करोगे
तो ही आप भूल पाओगे, मेरे को नहीं लगता, अदरवाइज तुम सिटीजनशिप भूल सकते हो एटलीस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो, राइट? मेरे ख्याल से मैंने इसको इतने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, मुश्किल होगी तुमको ये भूलना, ओके, अंटिल तुम कोशिश करके भूलोगे तो। सो जस्ट टू हैव अ स्मॉल रिकैप ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर, राइट? लेट्स फिनिश इट ऑफ ताकि तुम्हें एक पिक्चर हो जाए। आर्टिकल 5 इट डील्स विद डोमिसाइल, आर्टिकल 6 डील्स विद माइग्रेशन, आर्टिकल 7 और माइग्रेशन में डेट याद रखना 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 7 is reverse migration, okay, reverse migration, that is 0147, okay. Article 8 is the one which is dealing with registration. Article 9 says there shall be no dual citizenship, and Article 10 says once citizenship is given you shall continue. Article 11 says Parliament is the one which will continue with the citizenship after what's the date? 26 January 1950. बात समझ में आ गया? कोई डाउट? नैना जी is asking something. Let me see नैना जी. हाँ जी नैना जी क्या पूछ रहे हैं? Can even after this registration be denied? Yes. अगर कुछ fault मिलेगा तो yes it can be denied. All okay, friends. सबको clear? Should we continue? All right. Now Citizenship Act, Original Citizenship Act 1955 में आया था, okay? और फिर हमने इसको कंटिन्यूअसली अमेंड किया 57, 85, 86, 92, 93, 2003, 2005 और 2015 में भी किया, जो ऑफ कोर्स लैप्स हो गया, ओके? आज मेरे इसमें वो नहीं आ रहा, तुम्हारे what do you call comments I cannot read properly, okay, but either way everything should be good. So मैंने क्या पढ़ना है? Citizenship Act of 1955, okay? अब सुनो मेरी बात। Citizenship Act of 1955 डील करेगा विद सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है? अब इसको याद रखने का तरीका कुछ ऐसा है, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लिसन, इसको याद ऐसे रखते हैं, ओके? सबसे पहले देयर आर 5 वेज ऑफ सिटीजनशिप, ओके? मैंने सीक्वेंस अपने आप बदल रहा हूं, ओके? फर्स्ट वे इज कॉल्ड एज बाय बर्थ। क्या बोलते हैं इसको? बाय बर्थ। बर्थ को बोलते हैं जुस सोली। से द वर्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? जुस सोली। जुस सोली मींस बाय द वर्च्यू ऑफ सॉइल, मिट्टी से, बोलते ना, हिंदी में बोलते ना, मेरी मिट्टी में जन्म लिया मैंने, ओके? ये मिट्टी की वजह से, इस मिट्टी की वजह से मेरे को जन्म हुआ है, दिस इज बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह से देयर इज डिसेंट। डिसेंट मतलब मम्मी पापा की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, उसको बोलते हैं जुस सैंग्विन। सैंग्विन अगर तुमने थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है तो सैंग्विनिवोरस जो वर्ड आता है वो ब्लड से आता है, मतलब खून से, खून का नाता, बाय ब्लड, ओके? तो डिसेंट क्या है? जुस सैंग्विन। बर्थ क्या है? से द वर्ड जुस सोली। तो ये मेरे फादर मदर की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, हेंस कॉल्ड एज रिलेशनशिप बाय ब्लड। बर्थ इज बाय सॉइल। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके? अब इसको याद रखने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, ओके? फिर तुम कभी भी नहीं भूलोगे, अब तुम चाह के नहीं भूल पाओगे, ओके? कोशिश करना, ओके? इसको याद रखने का तरीका ऐसे, देयर आर 5 वेज जिससे सिटीजनशिप एक्ट तुम्हें सिटीजनशिप देता है। सिटीजनशिप एक्ट कब काम आने वाला है? ये काम आने वाला है आफ्टर 26 जनवरी 1950। यहां तक क्लियर है? इसको याद ऐसे लगते हैं, ओके? फर्स्ट मेथड इज बर्थ। बर्थ इज जुस सोली, दैट इज वर्च्यू ऑफ सॉइल। लास्ट मेथड, ये मेरा तरीका है, ओके? प्लीज इसको अपने आप से मत कर लेना, ओके? सेकेंड इज, लास्ट इज जुस सैंग्विन। जुस सैंग्विन मींस बाय ब्लड, ओके? अब इसको ऐसे करते हैं। थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन। मैंने क्या बोला? बाय रजिस्ट्रेशन, ओके? दिस इज बर्थ, सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन। Then there is naturalization. मैंने क्या बोला? Naturalization. और एक फिफ्थ मेथड है जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या बोलते हैं इसको? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सबको समझ में आ गया? अब मैंने इसको लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, ऐसे मुझे मजा आ रहा था तो मैंने चेंज कर दिया। तो फर्स्ट मेथड इज व्हाट? से द वर्ड बाय बर्थ। सेकेंड मेथड इज रजिस्ट्रेशन। ऐसा है नहीं, ओके? मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं। इनकॉर्पोरेशन को मैंने नया वर्ड यूज किया, मतलब दोनों का सेम ही होता है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। मतलब वही होता है, एक्विजिशन हो या इनकॉर्पोरेशन हो। इंडिया किसी और कंट्री को या किसी कंट्री को पार्ट में ले लो, इसका ए याद रखना। फोर्थ इज नेचुरलाइजेशन एंड फिफ्थ इज डिसेंट। तुम्हें ये सीक्वेंस याद रहेगा, ब्रांड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 5 मेथड्स, से द वर्ड बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। आर यू क्लियर ऑन दिस? फ्रेंड्स समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? 5 मेथड सिटीजनशिप एक्ट के। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आएगा 26 जनवरी 1950 के बाद। पहला मेथड बर्थ, मिट्टी की वजह से, जुस सोली। सेकंड इज रजिस्ट्रेशन। थर्ड इज एक्विजिशन, उसको वर्ड जो यूज किया हुआ है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। फोर्थ इज नेचुरलाइजेशन। फिफ्थ इज डिसेंट। डिसेंट इज मेरे ब्लड की वजह से, जुस सैंग्विन, दैट इज ब्लड। याद रखने का तरीका BRAND, ब्रांड।
पिक्चर क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? ओके, चले आगे. ऑलराइट, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ बर्थ, ओके, इसको बोलते हैं जुस वाली. मैंने तुम्हें बोला था मिट्टी की वजह से, ड्यू टू माय सॉइल. अब इसका मतलब क्या है? अब इसमें सीक्वेंस देखो. जो पहला स्टेप है, ओके, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ध्यान से लिखना है. अगर तुम्हारा जन्म हुआ born in India, okay, after 26 January 1950 but before 1st July 1987, दो डेट्स याद रखना यहाँ पर. इनफैक्ट तीन डेट्स याद रखना. 1 26 January 1950, second date is 1st July 1987, and the third date that you remember is 3rd December 2004. So what are the three dates I'm going to mention? First date is 26 January 1950, second date is 1st July 1987, the last date is 3rd December 2004. Now there are three conditions. If you are born between 26 January 1950 and 1st July 1987, then ये पहली condition है. The first condition here is that you were born after 26 January 1950 and born before 1st July 1987. Don't you worry. By the virtue of being born in this soil, you will be a citizen of India, regardless of कि तुम्हारे parents Indian citizens है या नहीं. मैं तुम्हारे parents के बारे में पूछूंगा भी नहीं. Are you understanding? बच्चा समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone is understanding or not? Got it? Second, we continue. Condition number 2. Condition number 2 here is that I was born after 1st July 1987. ये क्या था? Between. After 1st July 1987, either my father or my mother must be citizens of India. At the time of my birth. मैंने क्या बोला? At the time of my birth, या तो मेरे पापा या मेरी मम्मी must be citizens of India. बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? Everyone is understanding? Yes. Condition number 3. Condition number 3 is I am born after 3rd December 2004. अब इसके दो कंडीशन है. या तो both my parents should be born we citizen of India. Okay. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. At the time of my birth, at the time of my birth, या तो both my parents should be citizen of India, या फिर one should be a citizen of India, the other should not be an illegal migrant. Should not be an illegal migrant. Okay, so दो conditions हो सकती हैं. So मैं इसको रिपीट कर रहा हूं. Okay, everyone look here. So by the virtue इसको ध्यान से देखते जाओ. तीन dates, 26 January 1950, second date 1st July 1987, third date 1st July 1987, third date 3rd December 2004. Condition number 1, बेटा तुम पैदा हुए 26 January 1950 or 1st July 1987. If you were born between this age, no problem. Smile. Just smile करो. Why? Because we will not even look at your parents. Okay, you will automatically. I'm not interested in your parents' citizenship. 1st July 1987 के बाद, if you are born, then either of your parents, मैंने क्या बोला? या तो पापा या मम्मी must be citizens of India at the time of your birth. सबको समझ में आया? 3rd December 2004 के बाद अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो बेटा थोड़ा सा सोच समझ के. दो कंडीशंस है. या तो both your parents should be citizens of India at the time of your birth, या फिर एक any पापा या मम्मी should be citizen of India और दूसरे should not be an illegal migrant. तो तुम सोच ही सकते हो. Are you understanding कि citizenship acts जो होते हैं, okay, वो वक्त के साथ बदलते हैं. इसका मतलब है 2004 के बाद हमें ये फीलिंग आने लग गई कि ये इलीगल माइग्रेशन बढ़ती चली जा रही है. So we were trying to control this illegal migration. Are you understanding? Friends, is this picture clear? All okay? Lovely. Now सुनो. अब second is by registration. Okay. अब पहले अच्छा इसको second को registration नहीं करते. Okay, रुको. Second is by descent. Okay. By descent का मतलब है jus sanguine means by blood. तो सर इसमें उन सब लोगों से डील करेंगे who were born outside India. अच्छा अगर born inside India होगा तो ये तो मेथड ही नहीं चलेगा बिकॉज वो तो by birth ही हो जाएगा, by jus soli हो जाएगा. तो ये एवरीवन उससे डील करेंगे who are born outside India. अब इसमें तीन डेट्स, राइट? इसमें तीन डेट्स. फर्स्ट डेट 26 जनवरी 1950, अपने नोट्स में लिखते चले जाओ. सेकंड डेट 10 दिसंबर 1992 और थर्ड डेट 3rd December 2004. समझ में आ गया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? पिछली बार डेट थी 26 जनवरी 1950, फिर 1st जुलाई 1987 और 3rd December 2004. इस टाइम सिर्फ 1st जुलाई की जगह ये डेट याद रख लेना.
अब इसमें पहला लिखा है कि अगर तुम्हारा जन्म इज आउटसाइड इंडिया, जन्म इज आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक अगर तुम्हारा जन्म इज आउटसाइड इंडिया तो तुम सिटीजन हो सकते हो इंडिया के, लेकिन कंपलसरी है कि योर फादर, नॉट मदर, फादर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मेरी बात समझ में आ गई? अगर तुम्हारा जन्म आफ्टर 10 दिसंबर 1992 हुआ, कहां पर हुआ? आउटसाइड इंडिया हुआ, तो फादर ही नहीं मम्मी भी होगी तो भी चलेगा। ओके, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजंस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। 3 दिसंबर 2004 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको तो आइदर योर फादर शुड बी सिटीजन, मदर शुड बी सिटीजन, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है इन योर लोकल डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट हाउस या कॉन्सुलेट या एम्बेसी, जिस भी कंट्री में तुम्हारा जन्म हुआ, विद इन 1 ईयर ऑफ योर बर्थ। अगर तुमने ये नहीं कराया तो मैं तुम्हें ये बाय डिसेंट वाली सिटीजनशिप नहीं देने वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? लेकिन अब इसमें एक और छोटी सी बात तुम्हें पता चलेगी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो सिटीजनशिप होता है ना माय फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसी की तरह होती है। ओके, इसमें करीब करीब अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, करीब करीब अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू किसको सिटीजनशिप देनी है, नहीं देनी है, टाइम बढ़ाना है, टाइम घटाना है, एनीथिंग। तो ये जो 1 ईयर टाइम मिला हुआ है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जब मर्जी एक्सटेंड कर देती है। तो ऐसा होता नहीं है कि 1 साल के बाद वो डिनाई कर देते हैं, आमतौर पर वो टाइम दे ही देते हैं, बट फिर भी यू शुड नो दैट रूल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन शुड बी विद इन 1 ईयर। तो मैंने ये क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इसके पास करीब करीब अनलिमिटेड पावर्स है विद रिगार्ड्स टू सिटीजनशिप। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट फ्रेंड्स? ऑल ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमारे 2 तरह की सिटीजनशिप हो गई, बाय बर्थ हो गई जो सॉली, दूसरी हो गई जो सैंग्विन। प्लीज डेट्स याद रखना, जैसे जैसे डेट्स याद रखोगे सारा खेल ही डेट्स पे। ओके, तो अगर तुम्हारा सिनेरियो है बर्थ का तो 3 डेट्स है। कौन सी डेट्स है तुम लोग याद कर सकते हो? 26 जनवरी 1950, मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा। ओके, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। ओके, अगर जो सैंग्विन की बात हो रही है तो बाय डिसेंट ये कॉमन डेट है, ये कॉमन डेट है, सिर्फ इसको बदल दो 10 दिसंबर 1992। बात समझ में आ गया या नहीं? एवरीवन इज क्लियर? ऑल ओके? इससे इजी मैं तुम्हारे लिए कर नहीं सकता सिटीजनशिप। ओके, रेडी? चले? ओके, अब एक और बात है। अब तुम्हें पता नहीं, बड़ा कॉमनली सुना होगा नहीं, यू नो, हम पंजाबी लोगों को बड़ा ये ऐसा वो करते हैं, यू नो, हम लोग कनाडा जाते हैं ना तो हमको बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिलती है। ओके, तुमने सुना होगा, राइट? ये बड़ा फेमस है, पंजाबी लोग सारे कनाडा ही आ गए थे, राइट? नाउ द रीजन ओवर हियर इज, ओके, उसी तरह की नेचुरलाइजेशन वाली सिटीजनशिप इंडिया भी ऑफर करता है। ओके, नाउ दैट नेचुरलाइजेशन वाली सिटीजनशिप, ओके, इज गिवन टू ओनली सच पर्सन। बिल्कुल मेरे को ध्यान से सुनो। तो एक बाहर से, इंडिया के बाहर एक आदमी है, वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। तो भाई तेरे को ना 2-4 चीजें कंफर्म करनी है। यू हैव टू कंफर्म अ कपल ऑफ थिंग्स। नंबर 1, यू शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। से द लाइन, जहां पे भी हो वहां पे बोलो। फर्स्ट, यू शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। फिर बेटा यू शुड नॉट, तो तुम यहां पर आओगे ना तो तुमको ऐसी किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी अ सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री जो मेरे इंडियंस को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप नहीं देती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? बेटा यू शुड नॉट बिलोंग टू एनी सच कंट्री, ऐसी किसी कंट्री के ना सिटीजन आ जाना जो इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं देती बाय नेचुरलाइजेशन। अगर तुम्हारी कंट्री हमारे लोगों को सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन से नहीं देगी तो वी विल आल्सो नॉट एक्सटेंड यू द सिटीजनशिप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ नंबर 3 कि व्हेन यू कम टू इंडिया, ओके, यू हैव टू गिव अवे योर प्रीवियस सिटीजनशिप। तो तुम्हें प्रीवियस सिटीजनशिप छोड़ देनी है। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चौथा, तुम यहां पर आओगे ना, ओके, जब तुम 4th यहां पर आओगे, लिसन मी वेरी केयरफुली, तो तुम्हें अपना इंटेंशन क्लियर करना पड़ेगा। मतलब यू शुड शो योर इंटेंट कि तुम इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हो और इंडिया रहना चाहते हो, एंड देयरफॉर यू विल सब्सक्राइब टू एन ओथ। तुम एक कसम खाओगे, ओके, जो हमने फॉर्मेट में दी हुई है। यू विल सब्सक्राइब टू एन ओथ कि यू विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुम हमारे संविधान को, कानून को फॉलो करने का कसम खाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? सबको समझ आ गई? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग?
So point number 1, मैंने क्या बोला? मैंने बोला you should not be an illegal migrant. Number 1. Number 2, you should not belong to a country जो मेरे Indians को citizenship नहीं देती. Number 3, you should give away your or renounce your previous citizenship. Why? Because India does not recognize dual citizenship. Number 4, you should show your intent that you want to stay in India, and therefore you should subscribe to an oath that you will abide by the Constitution of India. यहाँ तक clear है? Okay. दूसरी बात है तुम्हारा गुड कैरेक्टर होना चाहिए. Okay. You should not have committed criminal offenses. Okay. अब इसका ये बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है. Okay. कुछ हुआ था, बट इन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऐसा बोला जाता है कि तुम फ्यूजिटिव नहीं होने चाहिए. वर्ड क्या है? फ्यूजिटिव नहीं होने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी कंट्री से कुछ मेजर गुनाह करके निकले हो और आ गए. तुम आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग द स्लाइड फॉर 1 मिनट. अब तुम नेचुरलाइजेशन सिटीजन करना चाहते हो. ओके, तुम नेचुरलाइजेशन करना चाहते हो, तो बेटा नेचुरलाइजेशन करने के लिए 2 चीजें. 1, तुम्हें हमारी लैंग्वेज तो आनी चाहिए, तो तुम्हें एक वर्किंग लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए. कौन से लैंग्वेज की? एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस जो हमारे 8th शेड्यूल में ऑब्जर्व्ड है. ओके, उनमें से किसी एक लैंग्वेज की तुम्हें वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए. राइट? तो तुम्हें बड़ा इतना आना चाहिए कि भाई समझ में तो आ रहा है, हिंदुस्तान में रहोगे तो हमारी भाषा तो समझोगे, फ्रेंच थोड़ा ना बोलोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेकंड हियर इज, ओके, सेकंड हियर इज कि तुम्हें कुछ ऑर्डिनरी रेजिडेंस होना पड़ेगा. ध्यान से सुनो मेरी बात. सपोज, अब ध्यान से सुनो. ओके, नाउ सपोज आज तुम नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन देना आए हो. ओके, तो आज तुम नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन देने आए हो. ठीक है जी. तो बेटा पहले है ना, इस एप्लीकेशन के दिन से, आज के डे से पहले तुम 12 मंथ्स कंटिन्यूअसली इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंस रहे. मैंने क्या बोला? तुम आज सिटीजनशिप के सॉरी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन देने आए हो, तो you should have 12 months of ordinary residence immediately prior to the day of naturalization, the date of application of naturalization. अब ये हो गया 12 months. अब यहां से काउंट करो प्रीवियस 14 इयर्स. प्रीवियस 14 इयर्स में 11 इयर्स किसी भी तरह से तोड़ के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, 11 इयर्स तुम इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंस होना चाहिए. तो इन अदर वर्ड्स तुम्हारे पास 11 साल की ये ऑर्डिनरी रेजिडेंस होनी चाहिए एंड 1 ईयर की इमीडिएट रेजिडेंसी होनी चाहिए. तब ही मैं तुम्हारे नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन को कंसिडर करूंगा. बात समझ में आया या नहीं? एनीवन हैज एनी डाउट हियर? नो डाउट? अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो. गुड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे लगा ही था किसी ना किसी तो होना ही चाहिए था. राइट, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. मुझे टोटल ऑर्डिनरी रेजिडेंस चाहिए 12 इयर्स की, 1 ईयर कंटिन्यूसली एंड इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन. तो मैंने आज एप्लीकेशन किया, 1 ईयर पहले तक मेरे को इमीडिएट चाहिए, और बाकी 11 इयर्स मुझे चाहिए इन द लास्ट 14 इयर्स. इस डेट से इस 1 साल के पहले वाले शुरुआत से मुझे पिछले 14 इयर्स में 11 इयर्स की ऑर्डिनरी रेजिडेंस चाहिए. तो 11 इयर्स स्प्रेड आउट इन 14 इयर्स प्लस 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस. आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? तो मेरा हो गया 12 इयर्स का ऑर्डिनरी रेजिडेंस. तब मैं तुम्हारी एप्लीकेशन रिसीव करूंगा. कौन सी एप्लीकेशन? मैं तब एप्लीकेशन रिसीव करूंगा ऑफ एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन. पिक्चर क्लियर? अब सर आप दे दोगे ना मुझे इतना सब कुछ करने के बाद? ओके सर, कोई मर्जी नहीं, मेरी मर्जी. मैं हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट. तुमने एप्लीकेशन लगा के अपना फर्ज पूरा किया, मैं दूंगा या नहीं दूंगा, इट्स माय चॉइस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरी बात है, इट कुड बी उल्टा आल्सो. ओके, इट कुड बी उल्टा आल्सो. व्हाट डज दैट मीन? तुम में से इसमें से कोई भी कंडीशन हो सकता है सेटिस्फाई ना हो. ओके, 11 साल नहीं रह रहे हो, 1 साल रह रहे हो, यू एनीथिंग, आई डोंट केयर. नेचुरलाइजेशन में तुम्हें फिर भी दे सकता हूं. इट इज मेरी मर्जी. हु एम आई एम द सेंट्रल गवर्नमेंट. Are you understanding? So we are very, very flexible about naturalization. Your on paper होता है, any of these rights, any of these conditions can be waived off. Okay? एक बार मैं डाउट लेता हूँ, यहाँ भर गई, भीड़ लग गई. ओके, फॉरेन डिप्लोमेटिक के चिल्ड्रन के केस में क्या होगा सर? किस बारे में क्या होगा बेटा? सिटीजनशिप में. अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे बॉर्न हुआ. ओके, इफ इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया तो रजिस्टर हो जाएगा. ओके, okay, so suppose birth after 10 December 1999 takes place by a mixture of Indian and illegal migrant in Jus Sanguin case. What will happen? Of Jus Sanguin case, mixture of illegal migrant in the 10 December 1992. Illegal migrant का तो कोई पोजीशन नहीं है ना. Jus Sanguin को कहाँ से इसमें ले आए बेटा? Either one of them should be a citizen, the other one should not be an illegal migrant. Okay, ये हो क्यों रहा है? तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि नहीं? Okay, you are understanding ये ऐसा क्यों हो रहा है? Because Citizenship Amendment Act आया होगा ना, तभी तो ये डेट्स आ रही है. तो जैसे जैसे सिटीजनशिप एक्ट्स बदलते जा रहे हैं, हम रूल्स चेंज करते जा रहे हैं. ओके, कैन दीस 11 इयर्स बी कंटिन्यूस? हाँ, अरे मोस्ट हैप्पी, कैसी बातें कर रहे हो?
बेटा अच्छी बात है ना, 12 years कंटिन्यूस तो और खुशी की बात है। प्लीज कम। ओके, everyone has understood? Cool. All right. All right. अब एक और है। अब कल इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले ले। अरे वाह, क्या थॉट है, वेरी नाइस। ओके, सो कल इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लिया, okay, ये हमारा हो गया। अब मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को कैसे सिटीजनशिप दूंगा, ये मैं डिटरमाइन करूंगा। मैं कौन हूं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं। ओके, सो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओके, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय लॉ आई कैन गिव माय सिटीजनशिप। ओके, सो मैं रूल्स बनाऊंगा और उस टाइम डिपेंडिंग अपॉन मैं कैसे किसको सिटीजनशिप देना चाहता हूं, आई विल गिव। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने पुडुचेरी लिया था, इट वाज एट दैट टाइम कॉल्ड एज पौंडीचेरी, तो हमने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, तो हमने क्या किया, सिटीजनशिप ऑफ पौंडीचेरी रूल्स 1962 पास किया और हमने पौंडीचेरी के सारे लोगों को अपना सिटीजन बना दिया। ओके, कंप्लीटली द चॉइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो जब होगा तब देखेंगे, जब पीओके आ जाएगा तो फिर ये वाला बात है। हमें प्लीज, आप आगे जा रहे हो बेटा, आप ट्रेन के आगे खड़े हो गए हो। ओके, सिट इन द ट्रेन। ओके, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, या आप आसाम एनआरसी अभी से कैसे पूछ सकते हो। ओके, सो प्लीज स्टिक इन द ट्रेन, मैं आपको आई टेक यू टू मसूरी। ओके, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन प्लीज, आगे के डाउट्स मत पूछा करो। ऑलराइट, नाउ अब एक और बात है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब नाम मुझे जुस सॉली मिल रही है। ओके, यानी कि बाय बर्थ नहीं मिल रहा है ना, मुझे जुस सैंगविन मिल रहा है। ओके, तो मैं एक और तरीका कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं बाय रजिस्ट्रेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बाय एप्लीकेशन लगाओ, ये तुमने बड़ा कॉमनली सुना होगा। यहाँ पे इंडिया में इतना, अब इंडिया में भी होता ही होगा, लेकिन पहले इंडियंस बहुत ये करते थे अमेरिका जाने के लिए। ओके, अमेरिका जाने के लिए वो लोग शादी कर लेते थे अमेरिकन सिटीजन से। ये सुनो, ये वो उसी तरह की सिटीजनशिप होती है, इसको बाय रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, सो व्हाई व्हाट वाज द रजिस्ट्रेशन? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, अरे पर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या? पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन समझ लो। तो रजिस्ट्रेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होगा या तो वो खुद ही या उसके पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे, या फिर ऐसी कोई भी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट बनी आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो ये रजिस्ट्रेशन किसके लिए है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अगर मुझे रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियन ओरिजिन है लेकिन इस टाइम सिटीजन नहीं है, तो उसको कैसे देंगे हम सिटीजनशिप? उसको देंगे कि हम उसको देंगे कि बेटा तू है ना यहाँ पर आ जा, 7 years you should have ordinary residence in India. Are you understanding? फिर तू यहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल कर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट मे गिव यू सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। दूसरा कि तू एक सिटीजन ऑफ इंडिया से शादी कर ले, ओके, और फिर 7 years यहाँ पे कंटिन्यूसली रहे, यू मे बी गिवन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये और एनी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजंस ऑफ इंडिया, उसको भी रजिस्ट्रेशन से मिल सकता है। सो तीन तरीका है। नंबर वन, यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, okay, stay here for 7 years, or marry a person citizen of India and then stay for 7 years, or if you are the minor children of citizens of India, then you may get citizenship by registration. मेरी बात समझ में आई? तो अगर तुम पर बर्थ वाला मेथड नहीं चल रहा, तुम्हारे डिसेंट वाला मेथड नहीं चल रहा, तो कौन सा लास्ट मेथड रहेगा तुम्हारे पास? रजिस्ट्रेशन, if you are a person of Indian origin. Are you understanding, my friends? Yes or no? Everyone has understood? ओके, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द सीन अभी तक 5 मेथड्स हुए। सो एवरीवन प्लीज लुक हियर। फाइनली बर्थ, सेकंड इज रजिस्ट्रेशन, अगर मेरे पास ना जुस सॉली चल रहा है ना मेरे पास जुस सैंग्विन चल रहा है। ए इज एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, एन इज नेचुरलाइजेशन एंड डी इज डिसेंट। पिक्चर क्लियर? ब्रांड से याद रखना, सिर्फ डेट्स भी याद कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। एवरीवन इज 100% क्लियर अबाउट दिस पार्ट और नॉट? Okay, lovely. Beautiful. Now, अब चले आगे। अब 3 तरीके, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। मैंने क्या बोला? सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ओके, मैंने क्या बोला? सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट तुमको तब ये बताता है कि, अरे क्या आप स्लाइड कॉपी कर रहे थे क्या बेटा? बाद में वीडियो देख सकते हो कि लगाऊं? ओके, बाद में वीडियो देख लो ना,
ओके, तुम्हारा रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, मैंने क्या बोला, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 वो तुम्हें डील कर रहा है कि तुम्हारी सिटीजनशिप गायब कैसे हो सकती है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज कैसे खो सकते हो, रिनंसिएशन से, सेकंड इज टर्मिनेशन से, थर्ड इज डेप्रिवेशन से। मेरी बात प्लीज ध्यान सुनो, ये तो मैं अपनी सिटीजनशिप खो कैसे सकता हूं। फर्स्ट मेथड इज रिनंसिएशन, सेकंड मेथड इज टर्मिनेशन, थर्ड मेथड इज डेप्रिवेशन। अब जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं वैसे याद रखो। ओके, ये है सेक्शन 8, ये है सेक्शन 9, ये है सेक्शन 10, बराबर है। अब सुनो, रिनंसिएशन का जो इंग्लिश मीनिंग होता है ना, वो होता है त्याग देना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको हिंदी में कैसे लिखते पता नहीं। ओके, तो त्याग देना, ओके, गिव इट अवे। ऑलराइट, नाउ गिव इट अवे, वॉलंटरली गिव इट अवे। तो क्या है, या बेटा सेक्शन 8 से बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम वॉलंटरली अपना पासपोर्ट सरेंडर करना चाहते हो ना, कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। In other words, you are giving away the citizenship of India. In other words, it is a voluntary act. Say the word, it is a voluntary act. Renunciation मैंने त्याग दी अपनी citizenship. Are you understanding? Okay. Termination, okay. Termination को बोलते हैं act of law. मैंने क्या बोला? It is an act of law. It is a legal consequence. कैसे? ये automatic होता है. जो T से T याद रखो. T से T मत रखो. ऐसे मतलब auto word use करो. Now, what does automatic mean? Automatic का मतलब होता है कि बेटा तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए ना, ओके, कोई टेंशन नहीं, तुम एक काम करो, ओके, गो एंड गेट अनदर कंट्री सिटीजनशिप, किसी और कंट्री की वॉलंटरली सिटीजनशिप एक्वायर कर लो, अमेरिका के सिटीजन बन जाओ, किसी भी कंट्री के सिटीजनशिप बन जाओ, पीछे मुड़ के देखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारी सिटीजनशिप गायब होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तुमने कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओके, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? वी विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट योर सिटीजनशिप। व्हाई? बिकॉज़ इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज, बोलते जाओ, क्या मैंने बोला, इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप। बात समझ में आया एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें समझ में आ रहा है? ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को आता नहीं है, अब मेरे ख्याल से तुमको सबसे इजी टॉपिक लगेगा ये। ओके, थर्ड इज, मैं इसको ऐसे याद रखता था, ओके, तो तुम भी ऐसे याद रख सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज कॉल्ड एज डेप्रिवेशन। अब डेप्रिवेशन को मैं ऐसे याद रखता हूँ, डी से डिसीट याद रखना, ओके, या डिसेप्शन याद रखना। डिसेप्शन यानी कि धोखा, ओके ना, धोखा या कोई भी डी, दोनों से। अगर तुम नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन, तुम्हें याद है, तुमने नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, और तुमने अगर एप्लीकेशन में एनी लाई लिखा, एनी मिसरिप्रेजेंटेशन किया, या फिर वंस यू गॉट द सिटीजनशिप, मुझे तुमने सब झूठ बोला था, तुम बड़े धोखेबाज थे, तुम जाके एनिमी कंट्री के साथ डील करने लग गए, ओके, या फिर तुमने नेक्स्ट 5 इयर्स ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप में कोई ऐसी सजा ले ली, कोई ऐसी पनिशमेंट आ गई जिसमें तुम्हें 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट आ गया। ओके शेरपाल, टेक केयर। ओके, लिसन, मैंने क्या बोला, नंबर 1, if you are applying under naturalization, if you're applying under registration, and in the application you have made any lies, any misrepresentation, once you have acquired citizenship, then you have started dealing with enemy countries, या फिर in the next 5 years जब तुम्हें citizenship मिली, तुमने कुछ ऐसा काम कर दिया कि तुम्हें 2 साल की सजा हो गई, बेटा, we will throw away your citizenship by deprivation. The government can take away your citizenship by deprivation. बात समझ में आया या नहीं? Friends, everyone is clear. So renunciation is a voluntary act, termination is by law, deprivation is by your deception या धोखा. Are we clear on this? Deprivation is you lie, Harshit. If you are lying, if I catch you कि तुमने झूठ बोला था, okay, कि तुम्हें लैंग्वेज आती है, तुमने झूठ बोला था, तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, any of these things, then I can hold you guilty under deprivation and take away your citizenship. Picture clear? You want to copy? Please copy the portion. So 3 types of citizenship: section 8, section 9, section 10. Section 8 is renunciation, termination, deprivation. Okay, and that's the way. Okay, all right. Naina seems to have the most highest component of doubts. Let me see Naina's doubts. Deprivation can also be citizens by birth. How can it be, beta? If you're born in India, you're born in India. So how can I do a dhoka if I'm born in India? Okay. All okay? Now, अब मैं तुम्हें कुछ बड़ा मेजर बता रहा हूँ. Listen to me very carefully. Now, first of all, एक गलतफहमी हटा दो, और जो हटा रहे हो उसको प्लीज याद रखो. Okay? India does not recognize dual citizenship. अरे यार, फिर डाउट. Yes, good, Dipali. That's correct. Deprivation is disqualification. Yes.
if we get involved with enemy country, yes, you can have deprivation. Okay. आसाम में अभी बता देता हूं मैं थोड़ी देर में. Okay, I'll tell you NRC. Okay, now listen. Sure. So deprivation is also act of law. It is not automatic, my friend. You have to prove it. Okay. Okay. Nitesh is asking, sir, if anybody lost of citizen, then how he survives? वो उसकी problem है, my friends. वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो पॉलिटिकल असाइलम लेगा, वो पाकिस्तान चले जाएगा, वो क्या करेगा? वो उसकी प्रॉब्लम है. वो मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है, my friend. मेरा काम इंडिया को बचाना है. जैसा ना क्रिमिनल्स के बारे में थोड़ा मैं सोचता रहूं. Okay. All right. Now listen. So अब let's get down to the points now. Now, if you have single citizenship, okay, मैंने तुम्हें क्या बोला? USA has double citizenship, okay. अब इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास की थी, अब हमने इसको हटा देना, okay. चलो इसको हटा देते हैं. All right, fine, okay. But India does not recognize dual citizenship. तो मैं तुम्हें अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, okay. Now listen. तो मैं बोल रहा हूँ PIO, ये वर्ड सुना हुआ तुमने? Okay. PIO, OCI, Overseas Citizen of India. PIO जो अब तक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, बट 15 जनवरी 2015 से अब PIO नाम का कोई स्टेटस नहीं रहा. इट हैज बीन मर्ज्ड विद OCI, बट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए है. मैं बोलता हूँ PIO, OCI, ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सिटीजनशिप. यस और नो? तुम्हें क्वेश्चन आया, PIO, OCI आर एग्जांपल्स ऑफ इंडिया गिविंग व्हाट इज कॉल्ड एज डुअल सिटीजनशिप. देखो कितने स्मार्ट हो तुम लोग. ओके, द इंटेलिजेंट पीपल ये है. ज्योति, आप लोगों ने PIO सुना भी नहीं? चलो सुन लो बेटा. इसको बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. ओके, मोदी जी बेचारे इतने बार बोलते हैं, इनको तो सुन लो. ओके, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI इज ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया. थोड़ा सा लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ाओ माय फ्रेंड्स. ओके, आसपास दुनिया में क्या हो रहा है पता होना चाहिए. ओके, आजकल तो ये लोग फैशन में है माय फ्रेंड्स. ओके, इंडियन सिटीजंस को पूछ कौन रहा है? ऑलराइट, थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करो, न्यूज़पेपर रहा करो. ओके, न्यूज़ को ध्यान से देखा करो. बी अवेयर, जिनकी रडार चलाते रखो. ओके, सिविल सर्विसेज रट के नहीं होने वाला है. सिविल सर्विसेज एन अवेयरनेस बेस्ड एग्जाम. राइट, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. ओके, आईएएस एस्पिरेंट्स को शोभा नहीं देता ये सारी बातें. ओके, यू शुड बी वेरी शार्प. राइट, इतने छोटी छोटी चीजें तो मैं मालूम ही नहीं थी. राइट, अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? ओके, मैं पूछ रहा हूँ PIO या OCI इंडियन सिटीजंस, सॉरी, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का एग्जांपल है? यस और नो? और तुम में से बहुत सारे लोगों ने बोला नो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. व्हाई? बिकॉज तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए. बिकॉज तुम्हें बहुत अच्छे से 100% मालूम है कि इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप. जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है. तो तुम्हारा आंसर एब्सोल्युटली क्लियरली होगा. इसी तरह से प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. इनको चीट कोड्स बोलते हैं. ओके, चीट कोड्स क्या होता है कि तुम्हें कुछ भी ना मालूम हो ना, हवा में भगवान जाने PIO OCI है कौन, तो भी तुम्हारा काम हो जाता है. राइट, व्हाई? बिकॉज तुम्हें बेसिक फंडास होना चाहिए. राइट, सो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीस पार्ट्स कि कैसे तुम्हें कभी कभी क्वेश्चंस को आंसर देना डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी ना मालूम. राइट, सो अब PIO और OCI तो नहीं है, तो PIO और OCI है क्या? राइट, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. नाउ पहले देखो इसको ध्यान से, एंड मेरे ख्याल से तो नोट्स बनाते चले जाओ. नाउ OCI क्या होता है? ओके, OCI इज एनी पर्सन who has an Indian ancestorship. okay, जिनके ancestors इंडियन से, जो आज की डेट में फॉरेन सिटीजन है. ये लिखते जाओ, OCI आज की डेट में फॉरेन सिटीजन है और इसीलिए उसके पास फॉरेन पासपोर्ट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, नाउ कौन एलिजिबल होना चाहिए? किसको OCI का स्टेटस मिलेगा? OCI का स्टेटस उसको मिलेगा जो या तो ओके जिस दिन इंडिया का कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, ओके, या फिर उसके बाद किसी भी जमाने में, ओके, कभी भी उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस थी कि वो इंडिया का सिटीजन बन जाए. ओके, उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस थी कि वो इंडिया का सिटीजन बन गया, बट वो बना नहीं. ओके, दूसरी बात, he belongs to any such territory that became a part of India after 15th August 1947. okay, 15th August 1947 के बाद इंडिया ने बहुत सारे एरियाज एक्वायर किए. ओके, गोवा एक्वायर किया, सिक्किम एक्वायर किया, पुडुचेरी एक्वायर किया. नंबर 3, ऐसे किसी भी आदमी का जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन थी, ओके, उसका चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि 3 जनरेशंस, राइट,
अगर इनमें से किसी भी एक कंडीशन को मैच करता है तो वो ओसीआई का स्टेटस उसे मिल सकता है। मिल सकता है मतलब क्या सर? मतलब बेटा इसको अप्लाई करना पड़ता है। ओके, इसको अप्लाई करना पड़ेगा एट द सीकेजीएस एप्लीकेशन सेंटर इन एप्लीकेंट जुरिसडिक्शन। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? इसको प्लीज पहले लिख लो आराम से। ओके, पहले लिखो ओसीआई का मतलब क्या हुआ, किसको एप्लीकेशन है। ओके, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं फिर बोल रहा हूं, एनी पर्सन जिसका इंडिया से कनेक्शन है, कभी भी कनेक्शन है, ओके, लेकिन आज वो फॉरेन सिटीजन है और वो उसके पास 8 फॉरेन पासपोर्ट है, तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा ओसीआई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? ना 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 बेटा, ओसीआई इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया तो डुअल सिटीजनशिप एक्वायर अलाउ ही नहीं करता। ओसीआई इज अ फॉरेनर, लेकिन उसका इंडिया से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि या तो मैं या मेरे पापा या मेरे ग्रैंडफादर, मैं फिर बोल रहा हूं, या तो मैं या मेरे पापा या मेरे ग्रैंडफादर was eligible to become a citizen of India on or after 26 जनवरी 1950। हमारे पास की क्वालिफिकेशंस और टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन मैंने एक ली नहीं, या फिर मैं ऐसी किसी टेरिटरी का सिटीजन था जहां पर जिसको इंडिया ने आफ्टर 15 अगस्त 1947 एक्वायर किया, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं टू गेट एन ओसीआई स्टेटस। बात समझ में आया या नहीं? हाउ डिफिकल्ट इज दैट? बच्चे सबको समझ में आ रहा है कि गायब हो गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस और नो? राइट। तो मैं, मेरे पापा या ग्रैंडफादर, ओके, का या तो एलिजिबिलिटी थी टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन मैंने ली नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पेरेंट पेरेंट है ना? ओके ओके, माय पेरेंट्स और माय ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, माय पेरेंट्स और माय ग्रैंड पेरेंट्स। ऑलराइट, नाउ लिसन। अब मेरे को फायदा क्या है? मैं क्यों ये ओसीआई ओसीआई लूं? मेरे को नहीं चाहिए ओसीआई। नहीं नहीं बेटा, ले लो, फायदा होगा। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों? फॉरेनर होने के बावजूद, फॉरेनर होने के बाद भी तुम फॉरेनर हो, लेकिन इंडिया आओगे ना, तो तुमको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं पड़ेगी, लेकिन वो एक वीजा बड़ा अजीब सा हो जाएगा। दैट वीजा इज मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग परमिशन। क्या मतलब? सर जितने मर्जी बार इंडिया आओ, इंडिया से वापस चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग वीजा दूंगा। ओके, तो भाई तुम्हारी तो मजा होगी, तुम्हें वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा तुम्हें। नंबर वन। नंबर टू, यस, वन टाइम मल्टीपल टाइम लाइफ लॉन्ग वीजा। प्लीज रिमेंबर, ये लाइफ लॉन्ग वीजा। दूसरा बात, पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं, कि इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आता है ना, ओके, तो उसको 180 डेज तक, उसको है ना, आमतौर पर जो फॉरेनर आता है उसको एक FRRO ऑफिस में जाना पड़ता है। दैट इज, वीजा जब एक्सपायर हो रहा होता है या वीजा हो जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरेनर, सॉरी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके, थाने में बताना पड़ता है उसको कि भाई मेरा ना वीजा खत्म हो गया है या सो ऑन एंड सो फॉर्थ, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम ओसीआई हो ना, तुम बिंदास रहो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें किसी FRRO के पास नहीं जाना, तुम इंडिया में वैसे रहो जैसे इंडियंस रहते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके फ्रेंड्स, सबको ये क्लियर है? मुझे नहीं पता बेटा अक्षय कुमार का क्या स्टेटस है, मैं पर्सनल मैटर्स में नहीं जाता किसी। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो मैंने क्या बोला? हु इज एन ओसीआई? अब ओसीआई समबडी हु हैज एन इंडियन लीनेज। फायदा क्या हुआ इंडियन लीनेज का? मुझे एक ही बार मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा। ओके, मुझे परमिशन रहेगा, मैं मल्टीपल टाइम्स इंडिया में एंटर करूंगा, मल्टीपल टाइम्स इंडिया में एंटर छोड़ूंगा। मुझे किसी FRRO को किसी भी टाइम पीरियड में नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे किसी थानेदार को जाके नहीं बताना पड़ेगा, मेरे को इस सब की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब एक और है, द सेकेंड पार्ट हियर इज PIO। नाउ PIO कौन होते हैं? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि OCI जो होता है ना, वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान के सिटीजन को नहीं दूंगा और मैं बांग्लादेश के सिटीजन को भी नहीं दूंगा। ओके, और मैं ऐसी और थोड़ी बहुत कंट्रीज है जिनको मैंने नोटिफाई किया हुआ है, उनके सिटीजनशिप को मैं नहीं, उनके सिटीजन को मैं OCI स्टेटस नहीं देने वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, तो मैं किसको नहीं देने वाला? मैं सारे फॉरेनर्स को दूंगा, लेकिन मैं 2-3 कंट्रीज को नहीं दूंगा। नैना जी फिर डाउट्स में आ रही, नैना जी का बता देता हूँ। ओके, नैना जी इज आस्किंग पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। बेटा मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, इट इज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स।
Though it is a special visa, but still visa is required. Yes, but multiple entry visa. इंडिया ने लैंड एक्वायर किया तो वाई वन विल गेट ओसीआई, ही शुड बिकम इंडियन सिटीजन. मेरी मर्जी, मैं नहीं ले रहा सिटीजन. सिटीजनशिप मेरी मर्जी बेटा, मुझे नहीं अप्लाई करना था. एक क्वालिफिकेशन तो मेरी थी बट मैंने नहीं लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बात मैंने क्लियर कर दिया बेटा. प्लीज ध्यान से एक बार बेटा लेक्चर सुना करो, मेरी लैंग्वेज सुना करो. तुम डाउट्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो 1 लाख डाउट्स आएंगे. मैं तुम्हें यू नो व्हाट आई एम टीचिंग यू, प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनो और समझा करो. ओके, concentrate on the class rather than your thought process. Okay, Sarvesh is asking, working professional just got to attend live, you made polity easy than any other subject. Thanks a lot. Thank you, God bless you बच्चे. Okay, all right, चले आगे. all right, अब PIO है. अब PIO कौन है? मैं ना, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो बच्चे. छोड़ दो ना बेटा, आपको पता तो दिया मैंने आपको. All right, now listen. Any person of Indian lineage, फिर से Indian lineage, हाँ, ये वही Indian lineage है. फिर से वही है जो फॉरेन सिटीजन है या फिर जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है. लेकिन ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कुछ अलग है. इन अदर वर्ड्स, एट एनी टाइम, कभी जिंदगी में इनके पास इंडिया का पासपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये किसी और कंट्री के सिटीजन बन गए. ओके, नंबर 2, या तो वो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि 4 जनरेशंस वर आइदर बोर्न इन इंडिया और परमानेंटली रिजाइडेड इन इंडिया, राइट, ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. मैंने क्या बोला? कौन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? कौन हो सकता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? ऐसा हो सकता है कि यार एक जमाने में, किसी जमाने में तो भाई आपके पास इंडियन पासपोर्ट था. ओके, नंबर 4, या तो मैं या मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, they were either born or were permanently residing in India during the government of, मतलब कौन सा इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ PIO कार्ड के. ओके, लेकिन जो मजेदार बात है वो ये है. ओके, प्लीज ध्यान सुनो. मजेदार बात ये है, मैं इसको मैप पे बनाता हूँ. होल्ड ऑन, कौन चला गया? wait, I need a खाली sheet. Okay, let me do this. Okay, now listen. लेकिन मैं PIO स्टेटस सबको नहीं दूंगा. ओके, आई विल नॉट गिव PIO स्टेटस टू सबको. ओके, किसको नहीं दूंगा? ध्यान से सुनना. ओके, तो मैं PIO स्टेटस किस कंट्री के सिटीजन्स को नहीं दूंगा. यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ईरान को नहीं दूंगा, ईरान के सिटीजन्स को नहीं दूंगा, अफगानिस्तान के सिटीजन्स को नहीं दूंगा, पाकिस्तान के सिटीजन्स को भी नहीं दूंगा, नेपाल के सिटीजन्स को भी नहीं दूंगा, चाइना के सिटीजन्स को भी नहीं दूंगा. ओके, भूटान के सिटीजन को भी नहीं दूंगा, बांग्लादेश के सिटीजन को भी नहीं दूंगा और श्रीलंका के सिटीजन को भी नहीं दूंगा. मेरी मर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बच्चा समझ में आया? मैंने किस किस को नहीं दिया? ईरान को नहीं दिया, अफगानिस्तान को नहीं दिया, पाकिस्तान को नहीं दिया, नेपाल को नहीं दिया, चाइना को नहीं दिया, भूटान को नहीं दिया, बांग्लादेश को नहीं दिया और श्रीलंका को नहीं दिया. मेरी मर्जी है, मैं बर्मा वालों को दे रहा हूँ. ओके, तो अगर किसी के दिमाग में ये आया ना नो नेबर, तो बर्मा भी हमारा नेबर है. ओके, मुझे लगा ही था कोई ना कोई इसको सी साइड के टाइप डील करने की कोशिश करेगा. ओके, मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है बेटा, ये डिस्क्रिशन है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है. ओके, तो पॉइंट यहाँ पर क्या है? हम ईरान को नहीं दे रहे, अफगानिस्तान के लोगों को नहीं दे रहे, पाकिस्तान को, ईरान कहाँ से हमारा नेबर हो. ओके, बट फिर भी हम नहीं देंगे इनको, हमारी मर्जी. नेपाल को नहीं देंगे, चाइना को नहीं देंगे, भूटान को नहीं देंगे, बांग्लादेश को नहीं देंगे, बर्मा को दे देंगे. ओके, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है. एंड श्रीलंका को नहीं देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट फ्रेंड्स? ऑल ओके? बात समझ में आ गया? ये लोग को हम नहीं देंगे PIO. तो PIO को क्या क्यों देना है? PIO को होने का फायदा क्या है? मुझे क्या फायदा PIO होने का? बेटा PIO होने के बड़े फायदे. PIO होने का फायदा क्या है कि तुम्हें भी वीजा नहीं चाहिए. ओके, लेकिन ये जो मल्टीपर्पस मल्टीपल एंट्री वीजा है, मैंने क्या बोला? मल्टीपर्पस मल्टीपल एंट्री वीजा है, वो तुमने OCI को लाइफ लॉन्ग दे दिया था ना, तुम PIO वाले को 15 साल के लिए दोगे. 15 साल. ओके, 15 साल के बाद तुमको ये फिर से रिन्यू करना पड़ेगा. इसको लाइफ लॉन्ग वीजा है. ओके, दूसरी बात, तुम्हें याद है मैंने यहाँ पे बोला था फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, दैट इज FRRO में तुमको नहीं जाना है, कभी नहीं जाना. अरे अनलिमिटेड रहो, इंडिया आए यहीं रहो, कोई खाना खाओ यहीं रहो, जिंदगी भर यहीं रहो, कोई टेंशन नहीं.
लेकिन पीआईओ वाले हैं ना, उनको 180 डेज के बाद थाने जाना पड़ता है, एफआरआरओ को जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सर 180 डेज हो गए, मैं यहीं पर ही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तो दोनों को है, लेकिन इसको ज्यादा पावर्स है, इसको ज्यादा फैसिलिटीज है। क्या फैसिलिटीज है? दैट हमने मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग जो वीजा मिला है वो लाइफ लॉन्ग है, यहाँ पे 15 साल का है। यहाँ पर तुम्हें कभी एफआरआरओ को थाने में जाके नहीं बताना है, यहाँ पर तुमको बताना है आफ्टर 180 डेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, सबको समझ में आ गया फ्रेंड्स? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तो कौन सा बेटर कार्ड है? बेटर कार्ड इज ओसीआई स्टेटस। ये सुनो, तो एक दिन पीआईओ लोग नाराज हो गए, ओके, पीआईओ मोदी जी के पास गए कि सर ऐसा क्या है यार, आप तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हो, थोड़ा हमें भी मदद कर दो, हम भी तो आपके ही लोग हैं, थोड़ा बहुत ही तो डिफरेंस है। तो मोदी जी ने बोला बराबर है। 15 जनवरी 2015 को हमने अमेंडमेंट कर दी एंड 15 जनवरी 2015 को हमने पीआईओ को मर्ज कर दिया ओसीआई के लिए। तो अब ये पीआईओ सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो गया, ओके, अब कोई पीआईओ नहीं, अब सब लोग ओसीआई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, तो ये जो पीआईओ था ये सब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, अब ये लोग गायब हो गए, अब सब लोग ओसीआई स्टेटस है। तो फिर से क्या हो गया, अब सब लोगों को मिलेगा मल्टीपल एंट्री वीजा एंड सेकेंड कि तुमको अब एफआरआरओ को नहीं, थाने में जाके नहीं बताना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पिक्चर क्लियर? ऑल ओके? नाउ सर, अब एक और चक्कर, ओके, लास्ट करूं, हो गया सबका? नाउ अब एक और चीज है which I want you to understand. अब क्या है, there is a third category. The third category is NRI. Okay? अब तुम्हें नाम से सुना जाएगा, सुनते रहो, देखो ये क्या है, NRI। तो ये कौन है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। मैंने क्या बोला? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो कितना भोला वाला क्वेश्चन है, इट्स वेरी इनोसेंट क्वेश्चन। आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंडियंस? वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, आप तो सर बहुत ही होशियार हो। यस और नो? आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंडियंस? ऑब्वियसली दे आर इंडियंस। तो आर दे सिटीजंस ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली दे आर सिटीजंस ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये नॉन रेजिडेंट है लेकिन है तो इंडियंस, तो सर फिर इनको एनआरआई क्यों बोलते हो? बेटा क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। मतलब क्या, उन्होंने किसी वजह से, बिजनेस की वजह से या टैक्सेशन पर्पस की वजह से या बाहर का मौसम हवा अच्छा लगता है तो रेजिडेंस खरीदने के चक्कर में या किसी भी और वजह से वो लोग 183rd डे, मोर देन 182 डेज ऑफ इंडिया से बाहर रहते। इंडिया के बाहर अगर तुम 182 डेज से ज्यादा रहोगे, ओके, एंड देयर आर सम अदर कंडीशंस जो इनकम टैक्स लॉ में आता है, तो तुम्हें मैं एनआरआई स्टेटस दूंगा। ओके, सर मुझे अप्लाई करना है क्या एनआरआई स्टेटस? ओहो, तुम्हें अप्लाई कुछ नहीं करना बेटा। जब तुम टैक्स रिटर्न्स भरोगे ना, तो तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारा एनआरआई स्टेटस में टैक्स भर देगा। ओके, लेकिन तुम्हें सेटिस्फाई क्या करना पड़ेगा कि ये जो नॉन रेजिडेंस पीरियड है ये सेटिस्फाई हो। इसका मतलब ऐसा कि सिटीजनशिप एक्ट में नहीं मेंशन है ना, बिल्कुल नहीं है। ओके, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम तो इंडियंस ही हो, तुम नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो। ओके, और क्योंकि तुम नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो, ये टैक्स पर्पस के लिए स्टेटस है। ओके, तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, राइट, वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, बहुत सारे बिजनेस पर्सन वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है। सर क्यों हो रहे हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस? बड़ा फायदा है बेटा इसका, टैक्स पर्पस के लिए बड़े फायदे। ओके, तुम इंडिया से बाहर जो कुछ भी कमाते हो, व्हाटएवर यू आर अर्निंग आउटसाइड, वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये टैक्स का फायदा है। तो ये ज्यादातर टैक्स का एडवांटेज है। सेकंड, एनआरआई जब यहाँ पर आते हैं तो उनको स्पेशल अकाउंट खोलने को मिलता है। ओके, बैंक में स्पेशल अकाउंट खोलता है, उसको नॉन एनआरओ अकाउंट्स बोलते हैं। जो स्पेशल अकाउंट्स होते हैं, फिर उसमें बहुत अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तुम ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, जिसकी लिमिट ज्यादा होती है। भाई क्यों? क्योंकि तुम एनआरआई हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दीस फीचर्स। एक और बात है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनआरआई कोटा होता है। ओके, जहां पे एनआरआई के बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो ये भी तुम्हारा फायदा है। तो सर एनआरआई होने का तो बड़े फायदे हैं, यस, बट याद रखना तुम इंडियंस हो बट तुम नॉन रेजिडेंट हो। तो सर मैं वोट कर सकता हूँ? ये सर मैं वोट कर सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं वोट कर सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज मैं इंडियन सिटीजन हूँ। हाउ सिंपल कैन दैट बी? यू नो, व्हाई इज लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड? इतना सिंपल है। यस, यू कैन वोट। तुम अपने आप को ओवरसीज वोटर रजिस्टर करोगे। क्या करोगे? ओवरसीज वोटर। तो सर मैं अपने आप को ओवरसीज वोटर रजिस्टर करूंगा तो आई कैन वोट। वेरी गुड। तो सर फिर तो मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, तुम प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। बन सकते हो क्या? बन सकते हो बेटा। तुम प्राइम मिनिस्टर रहोगे तो इंडिया में कैसे रहोगे ना, तुम तो एनआरआई हो। ओके, तो भाई हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाएंगे? ओके, तुम इंडिया में रह नहीं रहे हो, देश का प्रधानमंत्री देश के बाहर है, बताओ। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के बाहर रह रहा है 183 डेज, देश को कौन संभालेगा?
सो बेटा हम तुमको वोटिंग राइट्स दे रहे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Are you understanding? So I will not give you constitutional post, right? मैं तुम्हें constitutional post नहीं देने वाला, right? मैं पर तुम्हें voting rights दे रहा हूँ. क्यों voting rights दे रहा हूँ? क्योंकि तुम इंडियन हो. How simple is life, you know? क्या पूछ लेंगे तुमको सिविल सर्विसेज वाले? इसके आगे तुम्हें सब समझ में आ गया, सब लॉजिकल है. Yes, तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि NRIs are Indians, obviously Indians. PIO are Indians. अरे नहीं बाबा, they are persons of Indian origin, but they are foreigners. OCI as Indians. बेटा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ओवरसीज है, ओके, सो दे आर नॉट ऑफ अस, दे आर अगेन ऑफ ओरिजिन, वो सब फॉरेनर्स है, लेकिन एनआरआई हमारे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लोग बाहर गए हैं ऑन टैक्स बचाने के चक्कर में, राइट, रेजिडेंस के चक्कर में, फॉर सम अदर रीजन, बट इट इज मोर ऑफ अ रिलेशनशिप टू लॉ, सॉरी, मोर ऑफ रिलेशनशिप टू इनकम टैक्स लॉ. आर यू क्लियर ऑन दिस पार्ट? मंता सर, वी विल डू दैट व्हेन वी डू ओवरसीज इलेक्शंस, तब हम करेंगे. पिक्चर क्लियर? ऑल ओके, वेरी नाइस. चले आगे. ओके, लास्ट पार्ट. अब सुनो, अब हुआ क्या यार, अभी थोड़े से डाउट्स देख लेते. राणा रण प्रताप सिंह राय, यार एक तो आपके नाम का मैं फैन हो गया हूँ, बट राणा साहब अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब पुराना आपका डाउट होगा. एनआरआई एंड ओसीआई सेम, अब तो नहीं बोलोगे आप? ये सुनो, आई होप दिस इज क्लियर. बच्चा भी बोलने को दिल नहीं कर आपको, राणा साहब भी बोलने को. राणा जी, इज दिस क्लियर? मेरे को हो गया होगा. ऑलराइट, हर्षित तिवारी, अंडर ओसीआई सम कंट्रीज आर नेग्लेक्टेड एज ऑफ पीआईओ. यस, सम कंट्रीज, नॉट द सेम कंट्रीज बेटा, अलग कंट्रीज है. मैंने आपको पीआईओ की लिस्ट बता तो दी. ओके, ऑलराइट, कौन है? जाकिर एंथनी, क्वालिफिकेशन मेंशन अबाउट सिटीजन ऑफ, सो एनआरआई सिटीजन दे मस्ट बी अलाउड. क्या बेटा, कौन सा क्वालिफिकेशन? पता नहीं बेटा, जरा क्लियर करो डाउट्स. धापू सोनी, विल एनआरआई इनकम बी टैक्स इन फॉरेन लैंड्स? ऑब्वियसली बच्चे, कहीं तो दोगे. एनआरआई सिमिलर टू इंडियन डायस्पोरा? यस, इट इज इंडियन डायस्पोरा, इसी को डायस्पोरा बोलते हैं माय फ्रेंड, यही तो डायस्पोरा होता है. इज एनआरआई सिमिलर टू इंडियन डायस्पोरा? हाँ यही है बेटा, यही है. या तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है डायस्पोरा वर्ड, सब लोग एक ही बोल जाए, हाँ मेरा बच्चा ये डायस्पोरा है. जाकिर एंथनी इज आस्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्वालिफिकेशन. हाँ बेटा, एनआरआई इज नॉट कंसिडर्ड. ओके, वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए ना, पॉसिबली नहीं. यार प्लीज नॉनसेंसिकल क्वेश्चंस मत पूछना प्लीज, ओके प्लीज, ऐसा दिल के इमोशनल क्वेश्चंस मत पूछो. स्टे टू पॉलिटी माय बच्चा. हु इज मोर बेनिफिटेड, एनआरआई और पर्सन हैविंग ओसीआई? बेटा एनआरआई का अलग मेथड है, ओसीआई का अलग मेथड है. एनआरआई इज प्राइमरली फॉर टैक्स. सो अमिताभ बच्चन साहब इज एनआरआई इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड वाले बहुत सारे ह्यूज लोग, सारे के सारे दिस. ओसीआई तो फॉरेनर होते बेटा, वो इंडिया छोड़ के चले गए बेचारे को, उनको पॉइंट है. Okay, Dipali is asking, sir, if NRI comes back to India, so NRI status will be invalid. बेटा ये मेंटेन करना पड़ता है हर साल. तुम्हें अगर कोई एनआरआई जानता है ना, तो तुम उसको देख लेना, वो ऐसे 182 डेज अगर उसके नहीं कंप्लीट हो रहे हो ना, तो पागल हो जाते हैं बेचारे. वाई? बिकॉज वो बोलते हैं वो ये 182 डेज गया तुम्हारा, तो अगले साल इतना खतरनाक टैक्स लग जाएगा कि परेशान हो जाओगे तुम. सो यू हैव टू मेंटेन दिस. सर, फॉरेन रेजिडेंट हु वर्किंग इन इंडिया आर क्वाड? फॉरेन रेजिडेंट हु वर्किंग इन इंडिया आर क्वाड? और क्या फॉरेनर्स, फिरंगी, जो मर्जी बोल दो, जो प्यार से दिल करे बोलो. डिस्क्रिशनरी पावर्स जुडिशियल चैलेंज नहीं होंगे? क्यों चैलेंज होंगे बेटा? हाँ, अंटिल अनलेस प्योरी ऐसा कुछ गड़बड़ होगा तो अदरवाइज प्राइमरली जैसे. डज ओसीआई हैव द राइट टू वोट? बेटा ओसीआई फॉरेनर है, फॉरेनर है, फॉरेनर है, फॉरेनर है, फॉरेनर है, फॉरेनर है. अब आंसर खुद ही दे दें. ओके, समझ में आया बच्चे? लॉजिकल रहो बच्चे, लॉजिकल रहो, लॉजिकल रहो. सिद्धार्थ से पढ़ रहे हो. सिद्धार्थ सर डज नॉट टीच यू फैक्ट्स, आई टीच यू हाउ टू क्रिएट आंसर्स. फॉरेनर सिटीजन, फॉरेनर हमारे यहाँ पे वोटिंग कर सकता है क्या? डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लो, फिर वो भी वोटिंग करेगा. ओके, 2015, यस, आफ्टर 2015 ओसीआई एंड पीआईओ इज सेम. हो गया बच्चे? और बस करो यार, तुम लोग क्या एनआरआई बनने वाले हो क्या? मसूरी नहीं जा रहे हो? सर, एनआरआई कम टू इंडिया ड्यूरिंग इलेक्शन फॉर इलेक्टेड मेंबर, वेदर दे कैन इलेक्ट इलेक्शन. इलेक्ट इलेक्शन? इलेक्ट इलेक्शन क्या होता है? वोट ना, हाँ वोट कर सकते, बोल तो दिया.
ओसीआई टैक्स पे करेंगे, हाँ करेंगे, अपनी कंट्री में करेंगे, यहाँ पे क्यों पे करेंगे? ऑल ओके, चलो लास्ट पार्ट। नितेश जी सर, फर्स्ट टाइम रीडिंग पॉलिटी इन सच अ ग्रेट मैनर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुनो मेरी बात, थैंक यू, अब सुनो मेरी बात, लास्ट पार्ट, जगह ही नहीं रही सर, डाउट सी हो गए, कहाँ पड़ा? एक हाँ, ऑलराइट, अब एक ट्रेजेडी हुई, ओके अब सुनो, you know the tragedy happened in 1966 onwards, right? Now हुआ क्या, okay, see जब पाकिस्तान बना था ना my friends, you have to understand this, तो पाकिस्तान was a very proud two nation theory, एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था, ओके, जब इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन हुआ तो इस बेसिस पे हुआ, ओके, जब इंडिया और पाकिस्तान का ये डिवीजन हुआ, ओके, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान खुश रहने वाली कंट्री नहीं है, राइट? तो व्हाट हैपेंड, वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे, ओके, दे डिसाइडेड टू मिसट्रीट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तानीज, ओके, ज्यादातर डोमिनेशन यहाँ पर हो गया, तो उन लोगों ने उन मुस्लिम्स के साथ भी बुरा व्यवहार किया जो इंडिया से वहां पर गए, उनको मुहाजिर्स बोला गया, ओके, सिंधीज के साथ भी बुरा व्यवहार किया, उनको भी सेकंड ग्रेड किया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार उन्होंने बंगाली मुस्लिम से किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ 1962 वॉर के बाद, ओके सॉरी 65 वॉर के बाद, राइट, यहाँ पर जनरल याहिया खान आया, और सॉरी जनरल अयूब खान, और जनरल याहिया खान वाला जनरल अयूब खान ने, ओके, बड़ा मेजर प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने आर्मी को बोला कि धीरे धीरे यहाँ पर जेनोसाइड होना चाहिए, ओके, जेनोसाइड एज इन जो नेटिव बंगाली मुस्लिम्स है उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दो, ओके। फिर बाद में जनरल याहिया खान आए, ओके, उन्होंने भी ये सब सिचुएशन स्टार्ट किया। अगर थोड़ा थोड़ा बहुत तुम लोगों को 1971 वॉर की हिस्ट्री मालूम है, तो बांग्लादेश जो बाद में बना बांग्लादेश, वो ईस्ट पाकिस्तान से लोग भागकर असम के फील्ड्स में आने लग गए। Assam is a very beautiful place and Assam is a very mineral rich and resource rich environment, okay? तो जो लोग आने लग गए by 1971 भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, इन रेफ्यूजीज को चकमा रेफ्यूजीज बोलते थे, चकमा देते थे ये लोग, ओके, धोखा देकर आते थे। by 1971, okay, 1971, right, यहाँ पर लाखों लोग, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज आसाम के प्लेन्स में जमा होने लग गए। इनफैक्ट जब हमने 1971 वॉर किया तो मैडम इंदिरा गांधी का यही मॉरल हाई ग्राउंड था कि हम इतने सारे रेफ्यूजीज को सहेंगे कैसे, एंड इट हैज बिकम अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और इसीलिए इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया, एंड इंडियन आर्मी ने 16 दिसंबर 1971 को 4:32 PM पर पाकिस्तान को हरा दिया, ओके, एंड टाइगर नियाजी, AK नियाजी ने सरेंडर कर दिया और इंडिया ने बांग्लादेश लिबरेट करा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बड़े खुशी की बात है, खुशी बांग्लादेश को हुई, हमारी तो हुई नहीं, ओके, क्यों? क्योंकि ये लोग जो असम में आ गए, ये तो गए नहीं, इनको असम इतना अच्छा लगा, ये तो बोले हम यहीं पर ही रह लेते, राइट, ये गए नहीं, मेनी ऑफ देम डिड नॉट गो बैक, और ये एक बड़ी मेजर असम के लिए इंट्रिंसिक प्रॉब्लम हो गई। व्हाई? बिकॉज इतनी ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन की वजह से असम में लोकल्स को प्रॉब्लम होने लग गई। नाउ द रेस्ट ऑफ द 1970s में असम में बड़ी ह्यूज मिलिटेंसी हुई, ओके, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है उल्फा वगैरह, ओके, नाउ दिस उल्फा वगैरह सिचुएशन में मिलिटेंसी हो गई। 1985 में राजीव गांधी ने प्रफुल्ल महंतो के साथ एक सिग्नेचर किया। प्रफुल्ल महंतो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का हेड थे। नाउ ये जो अकॉर्ड था, इसको असम अकॉर्ड नाम दिया गया। से द वर्ड व्हाट वाज दैट? असम अकॉर्ड। नाउ असम अकॉर्ड ने एक नई डेट डिफाइन की। पहले उसने बोला कि 25 मार्च या 24 मार्च एक्चुअली ऑफ 1971 से पहले, 1966 से 24 मार्च 1971 तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम तुम्हें असमीज मानेंगे, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद जो जो असम में आया है, हमको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी रिलेशनशिप है टू असम। इन अदर वर्ड्स, उनको असम से सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी, और वो प्रूव करना के लिए प्रूव करोगे तो तुम्हारा नाम आएगा इन व्हाट इज कॉल्ड एज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या बोला जाता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। बात समझ में आया एवरीवन? नाउ फॉर मोस्ट पीपल, उन लोगों को ये समझदारी नहीं है, उनको लगता है एनआरसी आसाम के लिए बनाया गया। एनआरसी आसाम के लिए नहीं बना, एनआरसी 1951 से ही है, लेकिन किसी ने उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं महसूस की। क्यों? क्योंकि हमें ये दिल ही नहीं किया, हमें इतना कभी इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन आसाम अकॉर्ड में एक मेजर ट्रेजेडी होगी, ओके।
आसाम अकॉर्ड के बाद भी, होने के बाद भी इलीगल माइग्रेंट्स वहीं बैठे रहे, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। नाउ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली कि माय लॉर्ड, यार ये एनआरसी अपडेट तो हुआ ही नहीं माय लॉर्ड, हमें कैसे मालूम, तुमने बोल तो दिया आसाम अकॉर्ड, लेकिन आसाम अकॉर्ड के बाद वो जो इलीगल माइग्रेशन है वो तो वहीं पर ही घूम रहे, तो एनआरसी किसी ने अपडेट तो किया ही नहीं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हमको एनआरसी अपडेटेड चाहिए और हम इसको मॉनिटर करेंगे। नाउ द ट्रेजेडी ओवर हियर वाज समथिंग एल्स। ट्रेजेडी ये थी कि बेटा मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, आज शाम को, जब सॉरी शाम को 2 घंटा पहले मैंने बताया कि तुम्हारे को सिटीजनशिप ना एज्यूम की जाती है। आर्टिकल 10 बोलता है कि यू आर अ सिटीजन एंड यू आर कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन जब तक कि यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी अ सिटीजन। यस और नो? तो भाई मेरे को प्रूव नहीं करना कि मेरी सिटीजनशिप है, तुमको मुझे डिस्प्रूव करना है कि मेरी सिटीजनशिप नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बात समझ में आ गई ये लैंग्वेज? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? यस। लेकिन यहां तो ट्रेजेडी कुछ और है। ट्रेजेडी यहां पे है कि मैं 24 मार्च 1971 के बाद मुझे अगर अपनी रिलेशनशिप सिटीजनशिप आसाम से दिखानी है तो भाई मुझे प्रूव करना है। उल्टा है ना, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि मैं सिटीजन हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें डिस्प्रूव नहीं करना, मुझे प्रूव करना है। अरे यार दुख की बात यह है कि दिस इज चेंजिंग द ओनस, द ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे सर पे आ गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे नहीं मालूम है तुम लोग के पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुझे बोलो कि सर अपने 20 साल पहले का डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, अगर तुम्हारे पास 20 साल पहले तुमने कोई बिल भरा था, ओके, वो पेपर दिखाओ, वरना हम नहीं मानेंगे कि तुम्हारा ये टेलीविजन तुम्हारा है। तो मैं बोलूंगा भाई ऐसे कर तो टीवी ले जा, ओके, मुझे नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज मैं ये बिल कहां से लेकर आऊंगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मैं कहां से लाऊंगा 20 साल पुराना बिल? ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं हूं, राइट। आई एम सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं दिल्ली में हूं, तो मेरा ये हाल है। ओके, इमेजिन एक असम के विलेज में देयर इज पर्सन जो गरीब है, जो अनएजुकेटेड है, कि जिसने शायद कोई पेपर संभाल के भी नहीं रखा होगा, अचानक उसके सर पे अर्थक्वेक हो गया, अरे भाई अपना पेपर्स दिखा। डू यू रियलाइज कि इट इज अ वेरी मेजर डाउट प्रॉब्लम हियर? ओके, वो बेचारे प्रूव कैसे करेंगे? एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये पेपर्स या तो खो गए हैं या मिसप्लेस हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आइदर वेज एनआरसी ने इसे अपडेट करना स्टार्ट किया। 3.3 करोड़ 3.3 करोड़ ऑफ सिटीजन्स ने अप्लाई किया। किसने? सिटीजन्स ने, असम के सिटीजन्स ने अप्लाई किया विद रिगार्ड्स टू एनआरसी अपडेशन। ओके, और जब फर्स्ट टाइम सिटीजनशिप एक्ट, सॉरी, ये अपडेशन का टाइम हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ देम तो यहीं पर ही उन लोगों ने गिव अप कर दिया कि यार हम तो प्रूव ही नहीं कर सकते, देयर इज नथिंग एल्स, एंड देयरफॉर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल could not prove their citizenship, okay, with regards to this. However, अब on 31st August 2019, okay, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, okay, एनआरसी को देखा, तो एनआरसी ने अपना अपडेशन किया, एंड सुप्रीम कोर्ट के अब प्रोसेस में एनआरसी अपडेट हुआ तो 19,02,000 people have been excluded from NRC. In other words, वो अपनी सिचुएशन प्रूव नहीं कर पाए हैं। दिस इज अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ओके, नंबर वन, ये 19 लाख तो बड़े खतरनाक लोग हैं। ओके, ये तो बड़े खतरनाक पोजीशन में आ गए, बिकॉज इनको हम फॉरेनर्स डिक्लेयर कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, ये हम हमारे हिसाब से इलीगल माइग्रेंट्स हो जाएंगे। तो हम इनका क्या करने वाले, भगवान जाने। अगर हम अमित शाह साहब की बात मानेंगे तो वो बोले कि हम तो यहाँ को रहने नहीं देंगे, तो क्या हम 19 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर्स करेंगे? कुलदीप साहब बोले डिपोर्ट करेंगे। बेटा डिपोर्ट करने के लिए कोई पोर्ट तो होना चाहिए ना, कहाँ पे भेजने वाले तुम उनको? ठीक है, कोई कंट्री तो लेने को तैयार ही नहीं। ओके, तो किसके पास भेजने वाले? पाकिस्तान के पास? बांग्लादेश लेने वाला नहीं। ओके, सो आइदर वेज, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी। तो अब एक और बात है, तो क्या ये फाइनल एनआरसी आ चुकी? ओके, हैज इट हैपेंड? तो माय फ्रेंड्स, इसमें एक छोटा सा बात है व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड कि अब ये फाइनल एनआरसी तो लिस्ट तो आ गई है, लेकिन तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास 120 डेज है अभी फ्रॉम 31st अगस्त। 31st अगस्त से जो डेट है, वो जो 31st अगस्त से 120 डेज है, तुम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हो। कहां पर? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास 6 महीना है टू डिस्पोज ऑफ दिस मैटर। आइए, दिस 120 डेज ये समझ लो, 6 महीना ये समझ लो, मतलब 4 महीना और 6 महीना, 10 मंथ्स। 10 मंथ्स के बाद इंडिया को एक बहुत बड़ा जवाब देना। ओके, हम इन लोगों का करने वाले क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एक बड़ी मेजर ट्रेजेडी है, इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग जो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दिस इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, अगर तुम्हें इनका फैसला नहीं समझ में आया तो तुम गुवाहाटी हाई कोर्ट में
मूव कर सकते हो application or finally to the Supreme Court. The judicial review is open, but this is something that we have to show to the world कि हम इस situation को handle कैसे करेंगे. Are you clear on this, my friends? Everyone has understood? Yes or no? Shivam Saab is asking something. How other than 19 lakh prove the citizenship? जिनके papers है वो prove कर दिए बेटा. Okay, मेरे पास नहीं थे. Everyone has understood? All okay, right? I think that's more than enough for citizenship. Okay, इतना तुम कर लो, तुम टॉप कर जाओगे. Okay, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से लिख लेना. Right? This is what can be asked, what cannot be asked. Make sure that you revise this process. Let's see this part. All right. Thank you. That should be enough. See you tomorrow. God bless.